to another episode on Awaaz-e-Haqiqat, which is the voice of truth. I'm your host, Chris Malika Bhadra, and depending on whichever part of the world you're listening to us from, the topic that I, along with my guests, are going to be discussing today or tonight again is the concept of dowry and how often women are also getting labeled as gold diggers. I'm not sure in some part of the world, even if males do get labeled as gold diggers, but that is the whole crux of the conversation that we are going to having today. And with me, I have two of my very special guests. I'll start off with Natasha Sarkar. So Natasha's background is customer service and training and development professional who believes in work excellence and in working for the greater good. Her core strengths are customer satisfaction, team building, and employee motivation through exceptional communication skills. Over the years, dealing with different kind of customers and with different kind of background, Natasha has gotten to hear some really amazing stories and has been able to make some very interesting observation about people and cultures. My next guest is Misbah Khan. She's joining me all the way from London. Misbah is a registered member of the British Association of Counselling and Psychotherapy. Her work has transitioned over the years and her current interests include private counseling practice. And she's also a trainer in her specific interests supporting adults who feel they go through life not being enough, low self-esteem individuals having feelings that their life becomes a struggle for them, lacking purpose and motivation, feeling insignificant and unheard for the rest of the world, anger, anxiety, stress management, self-confidence, value clarification, and emotional intelligence. Misbah also utilizes her counseling process through cognitive and emotions-focused therapy on adults to reframe their view of self, regaining control of how they think and feel, and reconnect to those parts of themselves that can endure change and feel joy. On that note, ladies, thank you so much for joining me. I know we are connecting from different parts of the world altogether. How are the both of you doing? Good. It's a pleasure being back. It's always fun having these chit chats with you, and obviously having Misbah as my partner. I call her my partner in crime. Yeah. So yeah, it's always a pleasure being back. Thank you, Natasha. Thank you. Although this is a new platform, but thank you for coming back again. Mhm. Misbah, how are you doing? I'm good. I'm just going to echo what Natasha just said. So it's lovely chatting to you again. So it's an interesting topic or a bunch of topics that you've chosen. So let's start. Yes, sure. The first question is a very simple question to both of you. And I think probably, Misbah, I'll start with you. Natasha, I'll come to you after Misbah is done. Is why are they still talking about dowry in the 21st century? Why are we still talking about dowry? Because when I read your question, the first thing was like, bad habits die hard. Mm-hmm. So it's not about the ideology or the sense of, okay, what's societally, societally accepted, or it's more about as people pleasers, which is a core of many individuals that I work with, and I feel that a lot of people are still struggling to get out of that space of people pleasing. So what is dowry? Dowry is a requirement for the girl's parents, for the bride's parents, to pay for a kind of a gift towards her, but what's been happened is manipulated and is kind of been put in as a access for their child to have it's a bit like paying a down payment for a house. So if I pay you this money, then you will look after my daughter. So basically the value that money holds is equivalent to the daughter's successful marital life. So going back to the people pleasing, who is the main perpetrator or the main player in this? It's the groom, to be honest, because if they stand and say, you know what, not really interested, I'm getting married, I have a wife, we're going to build a life together, money or no money. But why doesn't he or they say it? Because they are people pleasers to the core and they don't want to ruffle feathers. So basically what they do is, whatever, we'll sort it out later, it's not my, and they kind of avoid their own responsibility in saying, it's not it's my parents. And you know how parents are, they don't really understand the trend. So there's many things like that. So it's basically, why is it happening? Because people haven't changed. 21st century is it's in the human evolution, or the way that our brains work. Time does not matter. Time is relative. So it's not about time
or the magnitude of the years past or decades past is basically about understanding why am I doing it. And when a specific individual says, why do I do this? Then changes happen. So yeah, it's happening because people haven't changed. People are still the same. Times change, people same. And thank you, Misbah, for pointing out that the big onus lies on the groom. That is something most of the grooms in South Asian communities, I think, need to step up on their roles. But if time permits, I'll come to that later. Natasha, coming on to you, if you want to add on or whatever, why are we talking about dowry still in this century? Misbah said it very well. उसने बहुत अच्छा explain किया. The only thing that I start with, जो मैंने इस चीज को समझा था कि where dowry at one point was a symbol of empowerment for a woman. जी. ठीक है ना, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रोम हो, चाहे wherever, dowry was very commonly done. But वो empowerment था कि एक तरीके से वो लड़की को उसकी inheritance देते थे. जी. कि ये लो, गॉड फॉरबिड कल को तुम्हारे मियाँ को कुछ हो जाए तो सड़क पे नहीं आओगी. ठीक है. ओवर द टाइम वो चीज को इतनी बुरी तरीके से कल्चरली वॉर्प कर दिया है कि वो एम्पावरमेंट की जगह एक ग्रीवेंस बन गई है फॉर वुमन. कि वो नहीं लेके आती तो उससे इतने क्वेश्चंस किए जाते हैं या उसके पेरेंट्स से, टू द पॉइंट के there are a lot of women that are sitting because there is no dowry for them to get married with or whatever. तो आई थिंक के ब्लेम एक तरीके से जो होता है ना, मिसबा इज वेरी राइट, ग्रूम का होगा. बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप एक नई जनरेशन है तो आपको एज अ मैन यू शुड एक्ट लाइक वन एंड स्टैंड अप एंड से नहीं बस. बट ऑल्सो द फीमेल, बिकॉज देखें पेट्रियार्की को भी अगर एक तरीके से देखे जाए, या ओल्डर जनरेशन जो हमारे पेरेंट्स हैं, दे हैव अ बिग हैंड इन इट. बिकॉज वो एक शोबाजी बन गई है ना कि ओ प्लीज just do this together and मेरे बेटे के साथ ये हुआ वो हुआ. तो आई थिंक in a way अगर बुड्ढे in so much saying are doing this, the younger generation needs to step up and say नहीं बस करें. जी. You know, tell their parents के इतना अगर आप मेरी डाउरी पे डाल रहे हैं, यही मेरी एजुकेशन पे दे दें भाई. राइट. तो आई थिंक जो फ्यूचर में एग्जैक्टली एंड आई थिंक जैसे मिसबा ने कहा है, ग्रूम का वो है, बड़ी शर्मनाक बात है कि you have an adult man who's ready to consummate or have sex in a शादी, but बिस्तर अफोर्ड नहीं कर सकता है अपना, वो लड़की लेके आएगी. You know, so it's actually very sad to see that इस किस्म की अपब्रिंगिंग आदमियों की हो रही है आजकल. Absolutely, Nada. Thank you, दोनों को, for bringing out the main points and setting the conversation on such a good start. जो मेरा अगला सवाल है, मैंने थोड़ा ना डेटा पुल किए थे from the statistics for the research that I was doing for the interview. So I saw somewhere it was published that in 2015, 7,634 women died due to dowry harassment, which represented approximately 21 cases per day in India. तो मैं सिर्फ अभी इंडिया की बात कर रही हूँ, but I'm sure South Asia में numbers relative ही होंगे. On that note, have the concepts of bride burning and dowry decreased? और अगर decrease नहीं हुआ है तो reasons क्या हैं फिर कि इतने cases हमारे सामने आ रहे हैं? Natasha, this time I'll start with you. Yeah, unfortunately, one of my cousins actually died in India due to bride burning. And जो उस चीज पे when we spoke to the family and everything about it, वो यही कहते हैं कि ये now it's become greed. It's no more like I said, empowerment. बड़ा इसलिए है कि exposure बड़ा है. You've got social media where you see बड़ी बड़ी गाड़ियां, you see, you know, branded चीजें और ये है वो है as status symbols. आपके बड़े बड़े जो I'm not going to name names, I don't know if I can, but अभी recently एक शादी हुई थी जिसके ऊपर पागलों की तरह पैसा खर्चा है. अब जब सोशल मीडिया के थ्रू लोग जब ये चीज देख रहे हैं, when they're watching all of it, जो एक आपका एवरेज माइंड है उसको ऑटोमेटिकली होगा, अरे यार दिस इज व्हाट अमीर लोग डू. तो आई को सोशल मीडिया हैज अ बिग हैंड, बिकॉज पहले वो क्या होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, अगर अमीर की शादी हो रही है गरीब को नहीं पता चल रहा. अब दुनिया को पता चलता है कि भाई स्टेटस को क्या है. तो आई थिंक वो बढ़ रहा है, वो डिक्रीज नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली, वो बिकॉज ऑफ दिस
एक्सपोजर वो बढ़ रहा है। थैंक यू नता। आई थिंक मुझे कहीं कहीं लगता है एक सिंस एजुकेशन की एक प्रॉब्लम है हमारे साउथ एशिया में, अवेयरनेस भी उसी तरह से कम जाती कि इसका कोई मतलब नहीं बनता, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट. Misbah, I'll have the same question. You've heard the numbers. So 7.6 grand women died because of bride burning cases in 2015. Why are these cases decreasing? And if not, then what could be the reasons? I'm going to reply this in Urdu. हमें ये नहीं पता कि ये डिक्रीज हुए हैं या इंक्रीज हुए हैं, एंड जब ये नंबर्स मेरे सामने स्टेटिस्टिक्स में सामने आते हैं तो मैं यही सोचती हूँ कि अभी तो ये जो नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं तो वो हैं जो रिपोर्टेड हैं, जो रिपोर्ट नहीं हुए वो कितने होंगे। और क्योंकि इसके पीछे भी बहुत कुछ है कि शर्म, शेम इज अ बिग थिंग। शेम असल में जो कोर प्रॉब्लम है ना वो शेम है। अगर उसमें काम किया जाए, पीपल अंडरस्टैंड के इसमें शर्म नहीं है। मेरी बेटी को अगर मतलब मैं जहेज या बड़ी शादी नहीं हो सकती तो वो चले, वो अलग किसी और दिन का टॉपिक है। बट यू सेड के ये बात की कि ये क्यों हो रहा है, अगेन वही बात कि जहेज क्यों दिया जा रहा है, सेम चीज है। द सेम आंसर अप्लाइज, क्योंकि लोगों में वो कहते हैं एजुकेशन का इश्यू नहीं है इसमें। मैं बहुत लोगों को मिलती हूँ, बात करती हूँ जो कि बहुत एजुकेटेड है, पीएचडी, पोस्ट डॉक। अवेयरनेस, लेट्स गेट दिस वेरी स्ट्रेट, अवेयरनेस, कॉन्शियस, ज़मीर और तालीम दो अलग चीजें हैं। इन दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं करें जी, ये सबसे बड़ा डायलेमा है हमारा। हम सोचते हैं जैसे पढ़ लिया वो इंसान बन गया, ये तो सबसे बड़ा कहती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ा एक वो है प्रोपेगेंडा है, पढ़ाई का बेवकूफी है। पढ़ाई का और जमीर का कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को तो आउट कर दो बिल्कुल, इस बात को ही खत्म कर दो। बात अब दूसरी आ गई कि ये होता क्यों है। लोग, वही बात आ गई, जब एक इंसान को एक पलड़े में तोला जाएगा जमीन, पैसा, गाड़ी, चीजों के साथ, तो एक लड़की का वेट हमेशा कम होगा, सोने से हमेशा या गाड़ी से कम ही होगा। तो क्या चीज का वैल्यू होगा? गाड़ी, सोना, जमीन, घर, ठीक है जी। तो वो नहीं जलाया जाएगा, उसको नहीं जलाया जाएगा, क्योंकि वो ये होगा कि ये लड़की हमारे लिए एक कमोडिटी है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। हम इसको क्यों ज़बा करेंगे? ठीक है, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा से इसको दबाएंगे, अंडा निकाल लेंगे। जब उन्हें पता चल जाता है कि ये मुर्गी उसी अभी अंडे देने से खत्म हो चुकी है, तो क्या होता है? यूजुअली क्या होता है? ऐसी मुर्गियों को ज़बा किया जाता है ना, खा लिया जाता है ना, बिरयानी बन जाती है या पुलाव बन जाता है, वटेवर बन जाता है। तो यहाँ पे भी वही सीन हो रहा है। जब उनको पता चल जाता है कि ये इंसान वो पहले की बात इंसान है ही नहीं ना, ये एक चीज है, ठीक है, इसका हम एटीएम है, इसके अंदर डालेंगे जब तक पैसे आ रहे हैं, ठीक है, नहीं तो छोड़ो, हमें क्या है, ठीक है। क्योंकि दिमाग में वही बात आ गई, ये नहीं तो कोई और नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, ठीक है। बिकॉज अगेन द मैन, द मेल पार्ट इज के ये दोबारा से शादी कर सकता है, इसको कोई फिक्र नहीं पड़नी, फर्क नहीं पड़ना। व्हाट नताशा सेड अर्लियर कि अगर लड़की की एजुकेशन हो, ठीक है, अक्ल तो उसको फिर भी नहीं आनी, मैं ये बात फिर भी लिख के भी बता दूंगी कि अक्ल नहीं आनी, लेकिन एटलीस्ट वो किसी ऑफिस में जाके या किसी जगह पे बैठ के काम तो कर सकती है ना, अपना पेट तो पाल सकती है, वो जलने से बच सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है ना, जो चीजें हैं उनको वैसे ही डेजिग्नेट करें, उनको लेबल करें जैसे वो हैं। क्यों हो रहा है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, क्योंकि इंसान नहीं चेंज हुआ, सिर्फ वक्त चेंज हुआ है, वक्त चेंज हुआ है। इस पे एक सब क्वेश्चन जो ओरिजिनली मेरे दिमाग में नहीं आया था, पर अभी आपकी बातें सुन के आ रहा है कि whenever I have these conversations, अक्सर some men come to me and say, तुम सिर्फ औरतों के बारे में बात करती हो, men also get abused, men, मर्दों को भी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि men also get abused in marriages, उनके साथ the second part जिस पे हम आने वाले हैं कि women being gold diggers, ये मर्दों के साथ कितने रेशियो में होता है? ये कॉन्वर्सेशन हमेशा ये ओवरलैप क्यों हो जाता है कि जब भी हम औरतों के बारे में बात कर रहे होते किसी ना किसी मर्द को होती है कि हमारे बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। मिसबा, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? क्या एक ही लफ्ज मेरे दिमाग में आता है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। के कोई भी, अगर मैं तो अब फेसबुक से खत्म हो गया, लेकिन अगर मैं फेसबुक पे औरत का रिप्रेजेंटेशन, तो अच्छा मर्द भी तो मर्दों के साथ भी तो होता है जी। इट्स लाइक they automatically put themselves in a situation जिसमें वो कभी नहीं हुए। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने ये कभी नहीं बोला, कभी कि पीरियड पेन या कभी लेबर पेन का लिखा हो तो उन्होंने कभी नहीं सोचा कि अच्छा मर्दों को क्यों नहीं आप बताती,
जी ठीक है, द ओनली थिंग इज उनको सोसाइटल पेन्स का मसला होता है। जी तो सोसाइटी में जो होता है जुल्म, अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा उनका लफ्ज होता है कि हम पे भी जुल्म होता है। हम्म It's not, I'm not denying, yes, men are also affected by rape, by abuse, by yeah domestic violence, ये सब चीजें हैं, but is very less। ठीक है, अगर 80% women है तो 20% men हैं, and I'm not saying कि वो 20% are not 20%, that's a human being, वो एक इंसान है उसके पीछे, उस नंबर के पीछे। बट अगेन जो मैं एक बात ये भी बोल सकती हूँ कि जो बोल रहा है ना कि हमारे बारे में बात नहीं करते, वो एक्चुअली इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें बाकी मर्दों के लिए वो अपने आप को चैंपियन बने हुए हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं कि उनको अपनी में कुछ मसला हुआ है कि उनके ऊपर उंगली उठाई गई है। वो इसलिए नहीं कि बोल रहे कि दूसरे का दर्द है, वो इसलिए मुझे क्यों तुमने दर्द दिया। दैट्स अ थिंग, देयर इज अ डिफरेंस। yeah makes sense। नताशा, आपको इस पे कुछ जल्दी से ऐड करना? यार मुझे सिर्फ इस पे ये होता है कि द रीजन ये आदमियों के साथ हो रहा है इसलिए कि द वर्ड मर्द, वो मर्द रहे नहीं है। ठीक है ना, अगर एक मर्द होता है, चाहे उसके पेरेंट्स कितना भी उसको पेट्रियार्कल उसमें डाल रहे हैं, माँ उसको वो कर रही है, अगर तुम मर्द हो देन यू नीड टू स्टैंड अप एंड से इट आउट लाउड दैट यू नो व्हाट, आई एम नॉट गोना डू दिस। मुझे शादी करनी है, मैं यहाँ शादी करूंगा, या मुझे शादी करनी है वो ऐसे होगी। आदमी को भी ब्रीड ऐसे किया जाता है कि उसको होता है कि ठीक है यार, मैं पोर्न देख लूंगा, मैं मैस्टरबेट कर लूंगा, मैं इधर उधर चला जाऊंगा, जब तक मुझे वो कमोडिटी नहीं मिलती जो मुझे गाड़ी बंगला दे सकती है। जी तो आई गेस अगर मर्द मर्द बन जाए तो वो इतना इशू ना हो इस चीज का जितना होता है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली एग्री। इस पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग अगला सवाल में टाई इन करती है कॉन्वर्सेशन इज, आई थिंक नताशा आपने भी पेट्रियार्की रेफर किया और ये कॉन्वर्सेशन तो है ही बेस्ड ऑन पेट्रियार्की। तो the question that I have is ki, what roles do the women in such families play in promoting or encouraging patriarchy? तो है ही, चलो even dowry harassment, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि मदर इन लॉ इन्वॉल्व होती है या सिस्टर इन लॉ इन्वॉल्व हो गई, तो ये जो फैमिली की जो विमेन है इनका क्या रोल होता है? नताशा, I'll start with you first, फिर मिसबा मैं आपके पास आती हूँ। यार मैं ये सोचती हूँ कि बात वही यहाँ होती है ना कि अगर एक इफ इट्स माय मदर वाज बॉट अप अ सर्टेन वे, कंडीशनड अ सर्टेन वे, कंडीशनिंग की बात हो रही है। जी अब वो कंडीशन हो गई है, उसकी जब शादी हुई उसके माँ बाप को खंगाल दिया कि नो यू नीड टू प्रोवाइड। अब वो औरत के अंदर कहीं ना कहीं बिटरनेस बैठ गई है। सही है। एंड आई फील बिकॉज अगेन जो मिसबा ने बात बोली कि एजुकेशन का कोई ताल्लुक ही नहीं है, एक सेल्फ अवेयरनेस होती है। जी जिस औरत में सेल्फ अवेयरनेस होगी वो कभी भी वो चीज को रिपीट नहीं होने देगी। ह्यूमन नेचर आई थिंक ये होता है बिकॉज उसको लगा है रगड़ा तो वो आगे वाले को भी लगाएगी रगड़ा। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैं कहती हूँ कि ये चीज खत्म हो सकती है अगर औरत एक स्टैंड लेना शुरू कर दे, जो घर की औरत है, कि यू नो व्हाट, इफ दिस हैपेंड टू मी आई एम नॉट गोइंग टू लेट दिस बी रिपीटेड विद समबडी एल्सेस डॉटर। वो होता नहीं है, चाहे वो उसके साथ हो चाहे उसकी बेटी हो, उसको पता है भाई मेरी बेटी भी आ रही है तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज को दिमाग में रखना है कि आगे मुझे देना है। अगर मैं स्टैंड ले भी लूंगी वो बेटी के लिए मुझे देना पड़ेगा। तो वो फिर वहां से ये भी होता है कि यार मैं लेके कोई ऐसी आऊं कि उसकी चीज मैं अपनी बेटी के थ्रू ट्रांसफर करके भी निकाल सकूं। राइट। तो इट इज अगेन इट कम्स डाउन टू, मेरे हिसाब से ह्यूमन नेचर के वो इतनी कंडीशनिंग बुरी तरह से हुई हुई है औरतों की कि वो दे बिकम अ वेरी बिग हैंड इन दिस काइंड ऑफ मेस rather than becoming somebody who would stop it. Absolutely. एंड इसका तो रीजन हम सबको पता है कि ये पेट्रियार्की की वजह से चले आ रहा है कि बिना काइंड ऑफ सब्ड्यू। मिसबा, आपका क्या ख्याल है ऑन दिस की व्हाट रोल डू द वुमेन इन दीस फैमिलीज प्ले इन डाउरी हरासमेंट इश्यूज? I don't, first thing is patriarchy doesn't have a gender. It's a mindset, it's an ideology. तो चाहे औरत हो या मर्द हो, patriarchy या misandry, पता नहीं कौन सा लफ्ज है, misogyny, sorry, is the same, is misogyny is not, वो कहते हैं ना कि मर्द का वो नहीं है, सर की टोपी सब पहनते हैं, जेंडर बेस्ड, इट्स नॉट जेंडर बेस्ड। तो बात ये है कि क्वेश्चन क्या था, सॉरी भूल गई। कि औरतों का क्या रोल होता है डाउरी हैरेसमेंट में?
बाकी औरतों में। हाँ, और अच्छा, अब ये हम अच्छा, लेट्स गो बैक अ बिट ना, लेट्स गो काइंड ऑफ बिट, क्योंकि डाउरी तो एक लाइक डाउरी का एज है 25 24, मतलब 26 मैक्सिमम लड़कों का, 28 जो भी है, लेट 20s, ठीक है। अब लेट 20 से पहले क्या हुआ, वो भी तो देखिए ना, कि वो डाउरी की बात एक्सेप्ट करने तक जब बात पहुंची, तो उस लड़के का दिमाग इतना नम क्यों है कि वो एक गलत चीज अपने सामने होता देख रहा है, एंड ही स्टिल ओके विद इट, ठीक है। So again, it's what Natasha said, the conditioning, the upbringing, and also this sense of unfairness, कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मैं भी जुल्म करूंगी। It takes a lot of healing. हमारे कल्चर में अनफॉर्चुनेटली बात वही है, एज अ साइकोथेरेपिस्ट में बात कर रही हूँ, मेंटल हेल्थ पे कोई बात नहीं करता, कोई नहीं बात अच्छा, वही सोचते हैं कि जब साइकोलॉजिस्ट तब जाना है जब किसी का बिल्कुल आउट हो चुका हो। वो ये नहीं करते कि जब मैं अब एक औरत है, उसके बेटे की शादी हो रही है और उसके दिमाग में, जहन में बात आ रही है, यार मैं ना अपनी बहू के साथ वही करूंगी जो मेरे साथ हुआ, तो वो अगर थोड़ी सी भी अवेयर होगी ना, कहेगी मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, मुझे किसी से बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे ना वो दे विल निप द बट इन इट्स प्लेस, ठीक है, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। वही होता है कि वो जहरीला पौधा फैलता रहता है, फैलता रहता है, फैलता रहता है, जब तक वो दरख्त बनता है, उसके नीचे जो आके बैठता है जो इंसान, जो दुल्हन है या दुल्हा भी, ऑफ कोर्स बेटा भी जुल्म ही है। इट्स ऑल्सो, ही इज आउट ऑफ कंट्रोल, ही इज नॉट बीइंग आस्क्ड टू बी अ मैन, ही इज नॉट अलाउड टू बी अ मैन, इज ऑल्सो जुल्म। हम ये भी देखने भूल जाते हैं कि बिकॉज ही इज डूइंग समथिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई ही इज डूइंग इट, ठीक है। तो जो प्रोग्रामिंग है, उसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग, वो कौन कर रहा है? इट्स द मदर या ओल्डर सिस्टर, या मतलब जो भी एक फीमेल जो कि थोड़ा बहुत पावर रखती है उसकी लाइफ में, ठीक है। पावर अगेन टू प्रोंग पॉलिसी है, या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है या वो डिजास्टर हो सकता है। तो बात क्वेश्चन ये था कि औरत क्या पार्ट प्ले करती है और क्यों करती है, क्योंकि वो अपने वो कहते हैं ना, वो अपनी बदला लेने के चक्रों में है। वो उसको खुन्नस अभी तक निकालती सेंस है। नहीं है, उसको अभी तक ये नहीं समझ आई कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे इसको बेटा और बहू को हंसते हुए देख के मुझे कोई तकलीफ हो रही है, मुझे क्यों अपना बेटा अपना हस्बैंड लगता है, मुझे क्यों बुरा लगता है जब ये अपने कमरे में जाके दरवाजा बंद करके तो बातें करते हैं, मुझे क्यों बुरा लगता है जब ये जल्दी वापस काम से वापस आके अपनी बीवी के पास जाके बैठता है। ये सब क्वेश्चंस हैं जो कि एक औरत को, एक माँ को, या मतलब जो भी बड़ी बहन को, या जो भी इस रोल में है, या जेठानी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो इस रोल में होता है, तो उनको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मुझे ये क्यों लगता है, ऐसा क्यों, मुझे इस जगह पे बैठ के ये क्यों महसूस हो रहा है कि उसको मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि मेरा रिश्ता वो नहीं है। Why do I want something which is not mine? It's a bit like बच्चा जाता है किसी घर में, ठीक है, बचपन में, तो उसको किसी घर में अच्छा खिलौना देखता है, तो वो कहता है कि नहीं इसके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है खिलौना, तो मैं इसको भी नहीं खेलने दूंगा, मैं तोड़ दूंगा। What is that? It's the same thing. What we see is women, they're not women, they're children, they're toddlers. They're toddlers who want to play with their toy and they don't want to share it. Simple as that. एक मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि आई थिंक दीज वुमेन डिडंट गेट दैट अमाउंट ऑफ अफेक्शन, उनको वो मोहब्बत नहीं मिली, क्योंकि पहले के जमाने में हमारी जो मदर्स हैं, ग्रैंड मदर्स हैं, उनमें कहाँ ये कॉन्वर्सेशंस होती थी। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है, सिंस मुझे ये अफेक्शन नहीं मिली तो इसको कैसे मिल रही है? डज दैट आल्सो काइंड ऑफ प्ले अ पार्ट? हाँ, of course it does. It's a wound, it's an emotional wound. ये एक जज्बाती जख्म है ना जी। लेकिन अब ये होता है ना कि एक हमारी दो ड्यूटीज होती हैं। वही बात आ गई ना कि मुझे दर्द हो रहा है तो मैं इसके बारे में क्या करूं, मुझे दर्द हो रहा है मैं दूसरे को दर्द दूं, दोनों चॉइसेस हैं। मैं अपने दर्द की वो कहते हैं कि दवाई खुद ढूंढूंगी, अपने दर्द का इलाज खुद ढूंढूंगी, या दूसरे को भी कहूंगी नहीं नहीं मैं तुम्हें भी दर्द दूंगी ताकि तुम्हें पता चले मुझे दर्द कैसा होता है। अगेन इट्स अबाउट चॉइस। मैं स्टेप बैक करके पीछे हट के देखूंगी कि मेरा इसमें मैं अपने आप को दर्द से बचाऊं या दूसरे को भी दर्द दूं। तो दो लोग दर्द में इमोशनल हो गए ना। इंटेलिजेंस बहुत लैक होती है ना, इमोशनल It doesn't इंटेलिजेंस exist. नहीं है। एग्जिस्ट नहीं करती। लैक तो तब होता है ना जब होता है कुछ, लैक तब होती है जब होता है, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे कल्चर में सबसे एवरीवन इज, मैं हमेशा इस चीज को रिपीट करती हूँ कि एवरीवन इज सो फोकस ऑन एजुकेशन, सो फोकस
on Mm. like textual या academic intelligence. Emotional intelligence जो कि हमारा survival का सबसे बड़ा critical point है, वो exist नहीं कर रहा. Exist नहीं तभी कर मैं रहा. कहती हूँ कि तालीम और ज़मीर दो अलग चीजें हैं. ज़मीर की खुराक इमोशनल इंटेलिजेंस है, तालीम की खुराक किताब है. इन दोनों चीजों में जब फर्क हो जाएगा ना इंसानों में, तो तब कुछ चेंज आएगा. तब तक बहुत मुश्किल है. सो इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग. समझें समझें समझें. आई थिंक ये साउथ एशियन सबको, एटलीस्ट इंडिया का अगर मैं बोलूं, या अभी भी वी आर रनिंग आफ्टर की पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, टू द पॉइंट की यू डू नॉट फोकस ऑन योर चाइल्ड्स इमोशनल डेवलपमेंट. वो तो कहीं पीछे ही रह जाता है. हाँ, ये साउथ पाकिस्तान में भी एशियन, सेम है हाँ साउथ एशियन बीमारी है ये. ये भाई. नहीं बल्कि नहीं, मैं तुम्हें हम्म. साउथ एशियन की बात में नहीं, ये अगर आप थोड़ा सा हमारे पता नहीं कौन से डायरेक्शन में, चाइना वगैरह में आप चले जाओ, जापान चले जाओ, वहां पे भी यही बीमारी है. ये बीमारी इनकी ना हड्डियों में फंसी हुई है. इनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, तब इनको कुछ अक्ल आएगी. लेकिन इट्स अबाउट चेंज. किसी को खड़ा होके ना कहना पड़ेगा कि यू नो व्हाट, आई एम नॉट टेकिंग दिस अहेड. मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, ये रोक रही हूँ, मैं इसको आगे नहीं लेके जा रही. यू नो, एंड उसके लिए हिम्मत चाहिए ना, उसके लिए हिम्मत चाहिए. Moving on to the other part, I'm mindful of time also, but now I want to bring the attention towards the other spectrum of the conversation, जो कि है women are often, I have heard men often labeling women as gold diggers. कोई भी पोस्ट पढ़ो ये अक्सर वर्ड आता है. अब मुझे ये समझना है, I want you guys to explain to our listeners also who or what becomes a gold digger, and what is the usual psychology of someone who might be exhibiting these traits of a gold digger. Natasha, I'll start with you first. यार आई एम सॉरी, मुझे ये गोल्ड डिगर वाली चीज जो होती है ना समझ नहीं आई है. बिकॉज बात वही होती है, गोल्ड डिगर औरत तब बनेगी अगर आदमी उसको इनकरेज करेगा. अगर मैं एक आदमी को जाके कह रही हूँ मुझे मर्सिडीज दिला दो, ब्रांडेड कपड़े दिला दो, ये दिला दो, अगर वो आदमी मुझे नहीं दिलाएगा, आई वुडंट बी लेबल्ड अ गोल्ड डिगर. सही है. गोल्ड डिगर सिर्फ तब है कि अगर, देखो, विच वुमन वुडंट वांट गुड स्टफ. ठीक है. अगर आपको वो कहा जा रहा है इन ऑल दीज जनरेशंस कि भाई आदमी इज योर प्रोवाइडर, आदमी इज योर यू नो देने वाला एंड व्हाटएवर नॉट. अगर मैं जाके एक आदमी को कह रही हूँ यार मुझे गाड़ी चाहिए या मुझे कपड़ा चाहिए या व्हाटएवर फॉर माय कंपेनियनशिप बिकॉज आई लाइक दोस थिंग्स, अगर वो आदमी मुझे प्रोवाइड कर रहा है, व्हाई वुड आई बी अ गोल्ड डिगर? गोल्ड डिगर वर्ड जाता है उन आदमियों से जो उस औरत को वो चीज प्रोवाइड कर नहीं सकते. सिंपल इज दैट. यू नो, अगर आपको एक आदमी वो चीज प्रोवाइड कर सकता है, वो कभी भी आपको गोल्ड डिगर नहीं होगा. बिकॉज उसको पता है कि यार इस औरत के साथ अगर मुझे टाइम स्पेंड करना है, बिकॉज शी इज ब्यूटिफुल, बिकॉज शी इज यंग, बिकॉज शी इज इंटेलिजेंट, व्हाटएवर, तो आई नीड टू स्टेप अप द बार. ठीक है. आई नीड टू स्टेप अप हर लाइफस्टाइल. अगर मैं नहीं कर सकता, देन दिस इज आउट ऑफ माय लीग. तो जो वो आदमी है जो उसको देख के तरस रहा होगा कि यार ऐसी बच्ची मुझे भी चाहिए, उसको जब वो नहीं मिलेगी तो वो होता है ना वही बच्चे वाला जो छोटे बच्चे करते हैं ना, वो कि हमें नहीं मिल रहा तो हम, गंदा है ये गंदा टॉय है. तो एग्जैक्टली वहां से वो चीज निकलती है गोल्ड डिगर की. सही है. बिकॉज बात वही होती है कि द वर्ड गोल्ड डिगिंग, गोल्ड किसके पास है भाई? Nobody can afford gold right now. तो किसी को इस तरीके से लेबलिंग करना इज बिकॉज आप अपनी शॉर्ट कमिंग्स को नहीं रिकग्नाइज करना मांगते कि यार हाँ मेरे में ये प्रॉब्लम है कि मैं इस बंदी को who's got a certain level of lifestyle नहीं दे सकता, तो आप उसको लेबल कर देते. आई थिंक दैट्स वेयर द गोल्ड डिगिंग थिंग कम्स फ्रॉम. जहां तक बात रही कि क्या स्टेटिस्टिक्स हैं या क्या ट्रेड्स होती हैं ऐसी औरतों की, I think those women know their own qualities, to be honest. उनको पता है कि we are something, we have something. चाहे वो looks हो, चाहे good sex हो, चाहे you know उसका स्टाइल हो, जो भी हो, उस औरत को इतना कॉन्फिडेंस है कि उसको पता है कि यार मैं कुछ हूं और मुझे ये प्रोवाइड करेगा. ये नहीं करेगा तो कोई और करेगा. तो मुझे नहीं लगता कि there is anything wrong. हर इंसान की भाई, अगर एक लड़का शादी करने जा रहा है, वो कहता है यार अम्मा गोरी लड़की लाके दो,
make sure she's got a good bust, make sure she's got a good ass. तो उसको क्या कहेंगे फिर हम? वो भी तो एक तरीके से अपनी वो मांग ही कर रहा है ना। जी तो जी अगर एक औरत आके बोल रही है, चाहे वो शादी में है नहीं है जो भी है, अगर वो कह रही है कि यार दिस इज माय वर्थ, दिस इज व्हाट आई वांट, यू कांट लेबल एनीबडी। तुम्हें नहीं अफोर्ड हो रही है, आगे जाओ, उसको कोई और ले लेगा। जी सिंपल इज दैट। fair enough on that. इस पे एक सब क्वेश्चन आता है, बड़ा उस पे आऊंगी once मिसबा has spoken. मिसबा, अच्छा। what are your thoughts on why are often, मैं ये नहीं कहूंगी हमेशा, why are often women labeled as gold diggers? अगेन इट्स अ माइंडसेट कि एक औरत को मैं प्यार दे रहा हूँ, अटेंशन दे रहा हूँ, तो ये मेरी अच्छाई है और ये मेरी अच्छाई है, हाँ। तो इसको मानना चाहिए। इट्स अबाउट अगेन एंटाइटलमेंट। Okay. अगर मैं अच्छा, इट्स अ बिट लाइक वी गेट दिस इनबॉक्सेस ना कि अच्छा द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के अच्छा व्हाट डू यू डू। हमें अगर आगे से आप कह दो, जवाब दे दो, तो वो कहते हैं अच्छा। आगे से कन्वर्सेशन अगर कह दो कि बायो लिखा तो गायब हो जाएंगे। अगेन इट्स अबाउट, it's not just about money. It goes back into the sense of power play. एक औरत की इतनी, मैं अब सख्त लफ्ज यूज करूंगी, लेकिन एक औरत की औकात इतनी कैसे हो सकती है कि वो मुझसे पैसे भी ले और मुझसे मेरा टाइम भी ले। मैं उसको टाइम दूंगा, मैं उसको पैसे दूंगा, वो मुझे नहीं मैनिपुलेट कर सकती, वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। जी सो इट्स अगेन इट्स अबाउट द सेंस के अ मैन, सॉरी ज्यादा मैन ही होते हैं, आई नो सेम सेक्स रिलेशनशिप्स में भी ये वाला डायनामिक चलता है। सो आई एम जस्ट गोना गो टुवर्ड्स द मैन बिकॉज Yeah. इट्स वेरी more majority. A man will say this not because they are afraid कि हमारे पैसे लेके भाग जाएगी। They are afraid कि ये लड़की या ये औरत जो सी है, ये हमें अपना वो रिफ्लेक्शन शो कर रही है जो हम खुद नहीं देखना चाहते। तो वो इट्स अ नास्टी वर्ड, गोल्ड डिगर इज अ वेरी नास्टी वर्ड, क्योंकि वो भी तो उसके साथ सो ही रहा है ना। वो क्या मुफ्त में उसको दे रहा है सोने के बिस्किट्स एवरी मंथ, एग्जैक्टली। ये लो बहन ये ले जाओ और अपने ऊपर ना खर्च लो क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ। नहीं, वो ही इज डूइंग इट क्योंकि वो ही वांट्स समथिंग बैक, ठीक है, Yeah. फ्रॉम हर। बट हाउ डेयर शी आस्क फॉर इट, हाउ डेयर शी फील एंटाइटल्ड, क्योंकि एंटाइटलमेंट तो सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि मेरा गोल्ड मेडल है, मैं पहन के फिर सकता हूँ। ये तो नहीं कर सकती, इसको मैं दूंगा, इसको मैं दूंगा। शी कैन नॉट आस्क फॉर इट। इट्स द सेम, अगर हम कोई टॉपिक करेंगे सेक्स इन मैरिज, वो भी सेम चीज है कि जी औरत नहीं कह सकती कि आई एम हॉर्नी। हाउ डे शी से दैट? ये कैसे हो सकता है औरत बोले ये मेरा हक है, मेरी मर्दानगी है, मैं इसको बताऊंगा कि हाउ टू सेटिस्फाई हरसेल्फ। जी तो ये सब चीजें कम फ्रॉम सेम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको हमेशा एक लफ्ज जब इस्तेमाल होता है तो उसके पीछे उसकी हिस्ट्री देखो। क्यों बोला जाता है गोल्ड डिगर? क्योंकि वो नास्टी है, बिकार बिकार टाइप का, भीख मंगा, नीडी, क्या कहते हैं, इम्पोवरिश्ड, अंडर प्रिविलेज्ड, ये लफ्ज हैं इसके पीछे। ठीक है, क्योंकि इसके पास अपना नहीं है, ये मुझसे मांग रही है और मैं इसको तब इतना ही दूंगा जितना मैं चाहता हूँ। So it's a bit like I will give you what you deserve and you can't decide what you deserve. I will tell you what you deserve. जी So it's not और जो about औरतें money. भी, It's और हाँ, एंड द women that label other women as gold diggers, मेरे हिसाब से ये वो औरत है जिसको खुद अभी तक अपनी वर्थ नहीं पता या जलती है, यू नो, इन द सेंसेस के exactly. हाँ ये कैसे ये कर रही है। ये तो बिकॉज देयर इज नो वुमन हु वुडंट वांट व्हाट दैट वुमन इज हैविंग, Yeah. राइट? बट वही है कि हम्म आप में वो तपड़ नहीं है कि आप निकल के बोलें कि एक्सक्यूज मी। तो उल्टा जो होता है ना, दे स्टार्ट लेबलिंग हर विथ द मैन, बिकॉज वो औरत जो है वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि उसको पता है कि यार अगर मैंने अपने ऊपर इतना टाइम और एनर्जी लगा के इफ आई एम लुकिंग दिस गुड देन आई डिजर्व द बेस्ट, वो Yeah. दूसरी औरत से बर्दाश्त नहीं होता है। And I would add something to that. Yeah. कि women are equally to be blamed for this. क्योंकि एग्जैक्टली। वो अपने आप को, सॉरी टू से, वो अपने आप को इतना ह्यूमिलिएट करती हैं, सेल्फ डिप्रिशिएट करती हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे, सॉरी टू से, कुछ औरतों के पास सिर्फ दुख सी होती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता।
ठीक है, एंड दैट इज 100% ट्रू। मर्दों के साथ भी कुछ के पास सिर्फ लुक्स ही होती है, मुंह खुलता है, बंदा कहता है मुंह छुपी हो जाए बेहतर है। इट्स द सेम थिंग, दे विल सेल व्हाट दे हैव। एक दुकान में आप जाओगे ना सब्जी वाले के पास, तो सब्जी ही बेच रहा है ना, उससे गोश्त तो नहीं मिलेगा आपको, गोश्त की दुकान पे गोश्त नहीं मिलेगा। तो इट्स अगेन कि ये लोग सौदाबाजी कर रहे हैं, एक सौदाबाजी के चक्रों में लाइक ना इस दे सेल व्हाट दे हैव एंड दे वेरी प्राउड ऑफ इट, एंड आई डोंट ब्लेम देम टू बी प्राउड। इसमें कोई मतलब बात नहीं है, लेकिन वही बात है कि आप एक दुकान खोल के बैठोगे तो कोई खरीदने वाला ही आएगा ना। अब आपको ओ माय गॉड मेरी दुकान पे खरीदने वाला क्यों आ गया, नहीं ऐसा नहीं होता। आपने दुकान खोली है, खरीदने वाला आ रहा है, ठीक है, आप ही दुकान बंद कर दो, शटर डाउन कर दो, भाई मैं तो नहीं बेचती कुछ, ठीक है। अगर बेचना है तो फिर बकाऊ माल भी, सॉरी टू से सख्त लैंग्वेज है, बकाऊ माल भी आपके लिए इस्तेमाल होगा, आपके लिए होगा कि ये पैसे फिर फिसल जाती है, ये करती है, वो करती है, सब लफ्ज आपके लिए होंगे कि आप बेच रहे हो अपने आप को। जो इंसान बेचता है ना अपने आप को, उसकी कोई जात नहीं होती। सो दिस अगेन ये बहुत ही, मैं कहती हूँ कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं दोनों साइडों पे, कि नहीं मैं बेचूंगी और मैं कहूंगी कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। नो, द पर्सन हु इज सेलिंग इज नेवर गोइंग टू बी पावरफुल, एंड आई एम सेइंग वेरी हार्श वर्ड्स, आई नो, लेकिन सच यही है। तो जितना हम सच के करीब हो ना, बात उतनी अच्छी होती है। बिल्कुल। मैं आई एम माइंडफुल ऑफ द टाइम, बट एक सवाल बिना पूछे मुझसे रहा नहीं जा रहा, विच इज, एंड आई एम प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। मैंने कुछ फेसबुक पोस्ट पे अक्सर पढ़ते हुए सुना है कि देयर आर सम मेन हु सेइंग विमेन, औरतों को हमेशा दे वांट अ मैन हु इज अर्निंग अ सर्टेन फिगर। अगर आप लोगों को इतनी वुमेन एम्पावरमेंट हो गई है, व्हाई डोंट यू मैरी समवन हु डज नॉट अर्न? इसका आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। मिसबा, व्हाट वुड यू से टू अ मैन, वो आपसे कहे कि अगर आप इतने लिबरेटेड हो एज अ वुमन, गो फॉर अ मैन जिसकी कोई कमाई नहीं है। तो भाई फिर मैं तो कहूंगी भाई फिर शादी ना करो। अगर बिकॉज यू नो व्हाट, मैरिज इज द कॉन्ट्रैक्ट। किधर भी जिस सोसाइटी में मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट है ना, चाहे वो क्रिश्चियन सोसाइटी हो, मुस्लिम सोसाइटी हो, वट एवर, लाइक हम सिविलाइज की बात करें, अमेजोनियन फॉरेस्ट की बात नहीं कर रहे कि वहां पे शायद दो दरख्त देते हो, ये लो जी हमारी बेटी आपकी भी, आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स, लेकिन इट्स अबाउट व्हेन यू आर एंटरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, a marital contract means कि आपको this person is going to be looked after you। अब मसला दोबारा से हो गया ना कि we are so confused as a society now कि हम हर चीज को we are, वो कहते हैं we are क्या कहते हैं, what's the word, comparing lemons with oranges। ठीक है, I mean totally wrong। एक मर्द शादी करना चाहता है ना, तो वो उस औरत को सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली, no matter what, because he wants her to be in a societal contract with her। अब यहाँ पे जो मर्द ये कहता है ना कि अच्छा तुम बगैर शादी, सॉरी बगैर पैसे के मर्द के साथ शादी कर लो, not really, because then that's not marriage। किसी भी लीगल डेफिनेशन में आपने मैरिज को देखना है, ओपन अप विकिपीडिया, ओपन अप गूगल, लीगल डेफिनेशन ऑफ मैरिज आप देखोगे तो वहां पे ये लिखा होगा कि द स्पाउस टेक्स केयर ऑफ द मैरिटल पार्टनर, ठीक है। और ये अभी की बात नहीं, हजारों सालों से यही बनता आ रहा है, और it's suddenly it's, and as that comparing lemons with oranges does not make any sense। empowerment for a woman does not mean कि वो शादी में जाके अपने हस्बैंड से पॉकेट मनी नहीं मांग सकती। मतलब why, मतलब एम्पावरमेंट का उसके साथ क्या ताल्लुक है? मतलब it doesn't make sense। ये जो इसको हम कहते हैं सर्कुलर कन्वर्सेशंस, ये वो लोग करते हैं जिनके पास कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल दलील नहीं होती, कोई आर्गुमेंट नहीं होती, फिर वो कहते हैं अच्छा वो क्या है, वो मतलब वो वहां पे अच्छा एग्जांपल मैं अगर कहूँगी पाकिस्तान में रेप होता है, ये बहुत ज्यादा होता है, वट एवर, ठीक है, तो मुझे बताओ लोग क्या कहेंगे, अच्छा अमेरिका में भी तो होता है। भाई अमेरिका कहाँ पे और पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, अमेरिका की बात नहीं, बट इट्स अबाउट क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ डिसोनेंस और डिस्ट्रैक्शन। जो छोटे बच्चों को बाल कटवाने जाते हैं ना, कहते हैं वो देखो हेलीकॉप्टर, वो देखो, मतलब हेलीकॉप्टर होता नहीं है, ठीक है, ये हमें हेलीकॉप्टर दिखा रहे हैं, ये हमें हेलीकॉप्टर दिखा रहे हैं, वो देखो हेलीकॉप्टर देखो, मतलब ना इट्स लाइक व्हाट आर यू ऑन अबाउट। मैं दोबारा से कहूंगी ये मर्द, सॉरी टू से, ये मर्द नहीं है, छोटे बच्चे हैं जिनको खिलौना चाहिए, वो भी अपनी चॉइस का और अपनी कंडीशंस का। Absolutely। So it's very very sad and it's very worrying
to see the society somebody है, लेकिन that's the truth. What? मर्द नहीं है. These are not men. These are children who are living in adult bodies. They're man And there's a baby, difference. so to say. Man child, exactly. Man child. Simple man child. Simple, no matter what. Thanks, Ms. Man. Natasha, any final words before हम इस conversation को यहाँ आज के लिए wrap up करें? यार मेरा सारा इस चीज में सिर्फ एक चीज वो है कि लाइक ओके वेस्ट में भी यहाँ पे इफ यू सी इन कनाडा इन अमेरिका आप कपल शादी कर लेता है, अर्निंग्स पे नहीं देखा जाता, कपल शादी कर लेता है, दे ग्रो टुगेदर. द प्रॉब्लम इन साउथ एशिया इज कि अगर एक लड़की एक कम पैसों वाले आदमी से शादी करेगी ना, फर्स्ट थॉट आती है अब इसको मैं फाइनेंशियली सपोर्ट करूं, फिर मैं इसके घर का काम भी करूं. सही है, ये तो हिलेगा नहीं कमबख्त, मैं घर का काम भी करूं, मैं इसके माँ बाप को भी संभालूं, तो व्हाट एम आई गेटिंग इन रिटर्न, राइट? मुझे क्या मिल रहा है? जी. सही है. तो वहां पे आके एक बहुत बड़ी जो होता है ना डिस्कनेक्ट आता है कि वेयर वो कहते हैं जी वेस्ट में होता है बिकॉज यहाँ का आदमी का बच्चा है, उसको खाना भी पकाना आता है, उसको लॉन्ड्री भी करनी आती है. अगर वो 20,000 कमा रहा है और उसकी बीवी 20,000 कमा रही है, तो वो आके घर में उसके साथ कुकिंग करेगा, बच्चे उसके साथ पालेगा, वो बच्चा छोड़ के मी टाइम लेने निकल के जा सकती है, वो बच्चा रख लेगा. और मैन बिकॉज दे आर, जैसे मिसबा ने कहा, दे आर बच्चे इन अ मैन्स बॉडी, उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि भाई अगर तू 30,000 कमा रहा है, उसमें तू घर भी चला रहा है, माँ को भी करा रहा है, बहन की शादी भी करेगा, उसके बाद तुझे बीवी भी चाहिए, तो वो बीवी भी कमा के आगे फिर गोल रोटी बनाएगी. तो कहीं ना कहीं women are becoming a little more intelligent where they're realizing कि यार एक मिनट, what the hell, like अगर यही सारा कुछ मुझे करना है regardless, तो मैं बाहर क्यों निकलूं? Exactly. तो यहाँ पे आके आई थिंक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है. Understood. बिल्कुल. अब मतलब मेरा दिमाग, my mind is like flowing with questions, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं we have to kind of wrap up एक conversation, but मुझे ये भी लगता है ऐसे conversations periodically होने चाहिए so that we raise more awareness. On that note, इतना important conversation था नताशा मिसबा, thank you so much इस पे बात करने के लिए, because ऐसा जैसे कि हमने पहले कहा, लोग उठ के step up करके बात नहीं करते. So आप दोनों ने काफी important points, you have touched on a lot of important pain points in our communities. Thank you so much. And I believe कि जो लोग मुझे सुन रहे होंगे, हम लोगों को जिन्होंने आज सुना, you've got a lot to take away. अगर आप लोगों के मुआशरे में ये हो रहा है, if people are suffering around you, please have a look, and if you need to stand up, please take a stand. Stand लेने का time आ गया, so it's high time you own up your responsibilities and take a stand, gender irrespective. So thank you, ladies. Thank you so much for being with me on Awaaz-e-Haqiqat. Wishing you all the best. Thank you for having us. Thank you. Take care. Take care.